Hello everyone, I welcome you all to Avision's online platform for VARC. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class we are going to learn some very important strategies and approaches to solve question called paragraph summary. You have to remember, paragraph summary is not optional questions. You have to answer 3-4 questions of paragraph summary in CAT examinations. So, as you know, paragraph summary is nothing but extended form of reading comprehension. So, I just want to remind you, in reading comprehension, whatever guidelines is you have learned so far, you need to implement on paragraph summary as well. One thing. Second thing, usually the length of paragraph stands between 100 to 150 words. So, you have to practice paragraph that fits in this length. Second thing, there is no shortcuts. So, you have to make sure you comprehend paragraph well. If you fail to comprehend, it's very less feasibility of your solving all the questions. So, the first thing you have to remember, you need to read paragraph well. You need to comprehend it well, and then comes some more important guidelines that we are going to learn right now. Chalo. So, as I said once you have read and you have understood the essence of paragraph, second thing comes, every paragraph has some elements. So, you need to identify some key elements. As you can see on your display, that it says you must try to pick subject matter of the passage and then look for the important elements in the passage. As I said, it's a very important rule. If you have to perform well in paragraph summary, the first thing you have to do, you must look for elements of the paragraph. What happens? It's important because in given option, they are bound to drop one of the elements. समझ में आ गया? For example, if a paragraph has 4 elements, option में क्या करेंगे? In 3 options, they will drop any one element, and in only one option, they will give you all 4 elements. So, if you are not aware of elements, you will not be able to identify the difference. समझ में आ गया? क्या guidelines आपको याद रखना है? You have to identify elements. Getting it? चलो, एक चीज है. And as I said you have to make sure no such element is left out in correct options, what you are going to choose. चलो. One guideline says the right option must not have anything apart from what is given in the passage. मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको एकेडमिक लैंग्वेज में इंसर्शन और डिलीशन अप्रोच बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंसर्शन और डिलीशन अप्रोच. इंसर्शन अप्रोच का मतलब है कि आपके पैराग्राफ में जो कुछ भी दिया गया है, दे विल इंसर्ट फ्यू मोर content or few more information. You have to be very careful कि पैराग्राफ में जो चीज दिया गया है, we have to make sure nothing is inserted. एक तो ये चीज हो गया. सेकेंड चीज क्या? You have to also make sure nothing is eliminated. तो ये क्वालिटी आपको रिमेंबर करना है. तो पहला गाइडलाइंस आपने देखा, यू हैव टू आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स. सेकेंड गाइडलाइंस क्या है? यू हैव टू मेक श्योर कि नथिंग इज इंसर्टेड और नथिंग इज डिलीटेड. ये आपको केयरफुली इंप्लीमेंट करना है. चलो, उसके बाद यू हैव टू कीप कंपेयरिंग वन ऑप्शन विथ अनदर ऑप्शंस. गेटिंग इट? Only then you can identify what is missing in these options. So, it's very important to play. You have to make sure you keep comparing given options, and then you have to judge which is the
most precise answer you are going to choose. Chalo. Okay. And one thing, as I said, I have already said you in reading comprehension, one approach called process of elimination. Process of elimination means if you are not aware ki which of the given options is correct, then at least you must know which option is incorrect. So if you are able to identify incorrect options and you keep eliminating them, you will be left out nothing but only one option, and that will be the correct options. Clear हो गया? तो आपको क्या करना है? Process of elimination को implement करना है. तो ये कुछ आपका बेसिक चीज है जो आपको केयर करना है. As I said you, ये आज पहला क्लास है. यहाँ पे हम लोग गाइडलाइंस अप्रोचेज डिस्कस कर रहे हैं. Now we will solve some questions that are asked in previous examinations. In coming classes also we will solve lots of questions that are based on the same guidelines. ठीक है. So now what we'll do, we are going to solve some questions. Have a look and make sure you implement all those guidelines that we have learnt. So let us start and have a look at question number 1. Before we look at exercise 1, one more thing I want to remind you. What happens? You must be able to identify between general and specific details. Getting it? For example, you have two options. One option is general in approach and second option is very specific in approach. Remember, in paragraph summary you have to prefer specific approaches first. Always prefer specific approaches because that is what going to be the more precise answer. Getting it? So key rule is we have to prefer specific rules and specific details over general details. ठीक है? चलो. तो now have a look. This is a small paragraph which is on your screen. You can have a look and then it will be followed by 5 options. ठीक? तो I believe कि you can look the passage properly. I will make sure you get proper visibility and I will help you to read the passage. It says, when the next full-scale global financial crisis hits, let it not be said that International Monetary Fund, that is IMF, never took a stab at forestalling it. Recently, the IMF proposed a new global tax on financial institutions loosely in proportional to their size, as well as a tax on banks' profits and bounces. ये आपका पैराग्राफ का कंटेंट दिया हुआ है. Now they have given you 5 options. Just have a look. I think you can look at option 1. It is very much displayed on your screen. Option 1 says the IMF has proposed a new global tax on financial institutions and banks in an attempt to forestall future financial crisis. And then comes option number 2. Option number 2 is on your screen again. As I said, you have to keep comparing given options. चलो, अब हम क्या करते हैं? As I said, remember students, this is just to exhibit how you are going to apply your guidelines. ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी टाइम का स्ट्रेस नहीं है कि we have to solve within 30 seconds. हमारा रिक्वायरमेंट है, can we implement all those guidelines that we have learnt right now? So
पहला चीज क्या है कि पहला गाइडलाइंस है यू हैव टू आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स। तो हम देखेंगे जो पैराग्राफ का की एलिमेंट्स है वो है आईएमएफ, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो है अटेम्प्ट टू फोरस्टॉल फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। यही ना, आईएमएफ का जो मेन मोटो है वो फ्यूचर क्राइसिस को अबॉर्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट समरी होगा उसमें ये सारा चीज मेंशन होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में है IMF has proposed global tax on financial institutions and banks in attempt to forestall future financial crisis। चलो अब हम कंपेयर करते हैं पैरा ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से। यहां पे IMF's new global tax on financial institutions bank will prevent future financial crisis। Remember, if you compare option 1 and option 2, पैसेज में दिया हुआ है इट इज एन अटेम्प्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो आईएमएफ का वो एक्शन है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को अबॉर्ट कर देगा या उसको नलिफाई कर देगा। ये एक अटेम्प्ट है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, विल प्रिवेंट। आप देख सकते हो, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं पेंसिल से। चलो यहां पे है विच विल फोरस्टॉल। विच का मतलब, विल का मतलब क्या, इट गिव्स यू परफेक्शन, देयर इज नो परफेक्शन। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। विल प्रिवेंट एंड विल फोरस्टॉल ये एग्जैजरेटेड ऑप्शंस है। वी विल नॉट चूज बी सी एज अ करेक्ट ऑप्शंस। ये चीज हो गया। चलो व्हेन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। यहां पे आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस बैंक्स प्रॉफिट प्रपोज अ टैक्स। हमने क्या बोला था कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सारे एलिमेंट्स को हाईलाइट करेगा। यहां पे उन्होंने केवल टैक्स को हाईलाइट किया है, वेयर इज हमारा जो एलिमेंट था वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स था और बहुत सारा स्ट्रेटजीज था। यहां पे उन्होंने केवल टैक्स को हाईलाइटेड किया है। इसका मतलब यहां पे डिलीशन अप्रोच इंप्लीमेंट हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। गेटिंग इट? चलो नाउ विल हैव अ लुक एट ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ई। इट सेज द प्रपोज्ड टैक्स ऑन प्रॉफिट्स एंड bounces of financial institutions and banks is an attempt to forestall future financial crisis। चलो तो अब हम कंपेयर करते हैं जो पैसेज में है और जो आपका ऑप्शन ई में है। एक चीज अगर आपने देखेंगे पैसेज का एक की क्या चीज है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या है, इट मींस ग्लोबल टर्म जो है ये की एलिमेंट है। इट इज नॉट अबाउट द रीजनल रूल्स एंड रीजनल थ्योरीज। ये क्या है, ये ग्लोबल इंप्लीकेशंस है। लेकिन आप देखो ऑप्शन ई को पढ़ो, ऑप्शन ई में कहीं भी ग्लोबल टर्म मेंशन्ड है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपने गाइडलाइन नंबर 1 पढ़ा कि दे विल एलिमिनेट वन ऑफ द की ऑप्शंस। तो यहां पे क्या है, वन ऑफ द की ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया है। ठीक, तो चलो तो यहां पे आपका जो ग्लोबल टैक्स है, ये ग्लोबल टर्म क्या है, ऑप्शन ई में मिसिंग है। इट कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शंस। बट इफ यू लुक एट ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में है ना, ऑप्शन 1 में ग्लोबल टैक्स मेंशन है। ऑप्शन 1 में आईएफ विजिबल है, इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स विजिबल है।
और अटेम्प्ट है फोरस्टॉल फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। इट मींस यहां पे एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3 एंड एलिमेंट नंबर 4। तो 4 एलिमेंट है और वो चारों ऑप्शन यहां पे विजिबल है। सो वी आर गोइंग टू चूज ऑप्शन 1 एज अ करेक्ट आंसर। तो ये एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे पैराग्राफ समरी का, आप ये सब गाइडलाइंस के साथ करोगे। अभी हम एक और पैराग्राफ को देखते हैं। एज आई सेड यू, इन कमिंग डेज, इन कमिंग क्लासेस वी विल सॉल्व some more questions of real time CAT examinations that were asked in previous year's examinations. So now let us move up to question number 2. Question number 2 is all about Russia and United States Cold War. है ना, क्या है United States Cold War और nuclear war, nuclear energy aspects. So briefly, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, मैं थोड़ा इनिशियली कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव साइंड अ न्यू स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ऑफिशियली द ट्रीटी कट्स देयर वेपन्स बाय 1/3, है ना, ये सब चीज है। द ट्रीटी इज अ कंसिडरेबल अचीवमेंट, ये एक अचीवमेंट है। thereby normalizing political relations, getting it? तो ये सब आपका क्या है, की एलिमेंट्स है। क्या सब की एलिमेंट्स है? एक ट्रीटी साइंड हुआ है फॉर न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, उनके आर्म्स को 1/3 से रिड्यूस करेगा, एंड देन इट्स एन अचीवमेंट किस चीज का, पॉलिटिकल रिलेशंस का। तो ये सब कुछ की वर्ड्स है जो आपको केयर करना है। Now when you go through the given passages in given options, ऑप्शन बी है, सी है, डी है, सो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में the new strategic arms reduction treaty signed between Russia and United States may facilitate further cooperation between them, है ना। तो इस ऑप्शन में कहीं भी न्यूक्लियर आर्म्स मेंशन नहीं है जो एक की एलिमेंट है। समझ में आ गया? इन पैराग्राफ हमने की एलिमेंट्स देखा, न्यूक्लियर आर्म्स, 1/3 रिडक्शंस, अचीवमेंट और क्या, पॉलिटिकल एग्रीमेंट। इसमें से मिसिंग है वो सारा एलिमेंट्स। इट इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। क्लियर है? चलिए, लुक एट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में भी अगर आप ठीक से देखोगे, हाँ, यहां पे न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन लिखा हुआ है 1/3, लेकिन कहीं भी ये अचीवमेंट जैसा डिस्कस नहीं हुआ। इट इज कंसिडर्ड अ बिग अचीवमेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प देम पॉलिटिकली अलाइनमेंट, और यहां पे अचीवमेंट ये मेंशन नहीं हुआ है। इट मे नॉट बी द करेक्ट ऑप्शंस। इफ यू लुक एट ऑप्शन डी, इसमें है रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, साइंड ए न्यू डील है, न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है और पॉलिटिकल रिलेशन है ना। तो यहां पे जो की एलिमेंट्स है वो साइंड अ न्यू ट्रीटी, न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन है और पॉलिटिकल रिलेशंस है। तो यहां पे 3, इट मींस 3 मेजर एलिमेंट्स आर बीइंग डिस्कस्ड। तो ये इसका क्या है, इसका जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है करेक्ट पैराग्राफ समरी होने का। ना हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को कंपेयर करेंगे, है ना। इफ यू रिमेंबर, हमारा गाइडलाइंस क्या था? हमारा गाइडलाइंस था कि यू हैव टू कीप कंपेयरिंग ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए, बी, सी, ई रेलेवेंट था, वी हैव ड्रॉप देम। नाउ विल कंपेयर ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। अगर आप दोनों ऑप्शन को कंपेयर करो तो ऑप्शन ई में
नहीं, ऑप्शन ए में क्या है, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का साइंड अ न्यू ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन है, ये तो डिस्कस हुआ है, और ये अचीवमेंट भी है। क्या मिसिंग है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट मिसिंग है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिकॉज दे आर, इट्स अ कंसिडर अ पॉलिटिकल ट्रीटी, इट विल ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन बोथ द नेशंस। तो अगर आप कंपेयर करो ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को, दोनों में से ऑप्शन ई में एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई हुआ है एंड दे हैव एलिमिनेटेड वन की एलिमेंट, वो क्या, पॉलिटिकल, नॉर्मलाइजेज पॉलिटिकल रिलेशंस। अभी आप देख रहे हो another wave of cold war is going on between United States and China, है ना, उससे क्या है, पूरा ग्लोबल पीस जो है रिस्क पे है, इसीलिए ऑप्शन ई कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सीम्स टू बी मोर रिलेवेंट कंपेयर टू ऑप्शन ई। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आया हुआ है ना। इफ टाइम परमिट्स, है ना, वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट वन मोर क्वेश्चंस, एंड एज आई सेड यू, in coming classes we will solve lots and lots of questions. So now we'll go to क्या, question number 3। और जैसा कि आप देख रहे हो question number 3, I believe कि it is bit lengthier compared to whatever you have solved so far। तो इस पैराग्राफ में जो विजिबल कीवर्ड्स है वो सदर्न सूडान है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। एज यू रिमेंबर, वी नीड टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वी नीड टू आइडेंटिफाई सम की एलिमेंट्स। तो सब्जेक्ट क्या है, सदर्न सूडान, और मिलियंस ऑफ पीपल है, किस पे डिपेंडेंट है, फूड एड पे, और शार्प राइज, ठीक, फूड शॉर्टेज, ये सब आपका क्या है, की एलिमेंट्स है। अफ्रीका एंड एशिया, ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू मीट बेसिक, चलो, हायर फूड प्राइसेस, आर गेटिंग इट। तो पूरे पैराग्राफ में जो कुछ की एलिमेंट्स आपको दिखा वो है सदर्न सूडान, मिलियंस ऑफ पीपल, डिपेंडेंट ऑन फूड एड, शार्प राइज इन क्या, कॉस्ट ऑफ स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप का मतलब चीफ क्रॉप, जो उनका मेन क्रॉप है ना, और फूड शॉर्टेज, अफ्रीका एंड एशिया, हायर फूड प्राइसेस, ये सब कुछ एलिमेंट्स है जो आपको कंपेयर करना है ऑप्शंस में, और जिस ऑप्शन में इसमें से मोस्ट एलिमेंट्स विजिबल होगा, दैट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर, है ना। चलो, तो ये आपका गिवन ऑप्शंस है, हम इसको क्लीन करते हैं। चलो, तो पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए में एन इम्पेंडिंग फूड क्राइसिस लूम सदर्न सूडान हायर प्रोसेस, यहां पे सदर्न सूडान तो है ना, लेकिन एज यू सॉ कि क्या ये केवल सदर्न सूडान का प्रॉब्लम है, नहीं, दिस प्रॉब्लम ऑफ फूड क्राइसिस is a problem, is a global problem. It means whole Asia and whole Africa and part of Asia, they are under the food crisis. तो यहां पे उन्होंने जिस चीज को इग्नोर किया है, एलिमिनेट किया है, वो क्या है, एशिया एंड अफ्रीका। सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट समरी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे उन्होंने की एलिमेंट को ड्रॉप किया है।
ऑप्शन बी को ठीक से पढ़ेंगे। ऑप्शन बी में अफ्रीका एंड एशिया डिस्कस हुआ है, यहां पे सदर्न सुडान भी डिस्कस हुआ है। एंड पॉवर्टी में वर्सन ओविंग टू फर्दर अराइज इन द कॉस्ट ऑफ स्टेपल क्रॉप। चलो हम ऑप्शन बी को कंसिडर कर रहे हैं अभी एंड विल कंपेयर इट विद सम अदर ऑप्शंस, ठीक है। सो बिकॉज ऑप्शन बी में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विजिबल है, हम इसको होल्ड करते हैं अंटिल वी गेट बेटर ऑप्शन। नाउ लुक एट ऑप्शन सी। इट सेज many countries in Asia and Africa are prolonged food shortage। ये यहां पे जो एक्स्ट्रा आपको एलिमेंट दिखा वो prolonged का मतलब the problem that they have been facing for years, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस जाते हैं पैसेज में। पैसेज में आप देखोगे है ना, यहां पे है अ टर्बुलेंट पीरियड दैट बिगन 2 years ago। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म या ये सीजनल प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द लास्ट 2 years दे हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर सफिशिएंट फूड। तो प्रोलॉन्ग जो है वो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कहा था आपका, वो आपका ये आपका बी में मिसिंग है। बी में दे हैव नॉट डिस्कस प्रोलॉन्ग और फॉर 2 years, ये चीज मिसिंग है, हम बी को एलिमिनेट कर देंगे। गेटिंग इट? चलो क्वेश्चन नंबर हम सी को रखते हैं। सी अभी क्या है, अंडर कंसिडरेशन है। हम ऑप्शन डी को पढ़ते हैं। इट सेज food crisis in Africa and Asia already struggling under देखो यहां पे क्या है, यहां पे लिखा हुआ है फूड क्राइसिस इन एशिया एंड अफ्रीका स्ट्रगलिंग। गेटिंग इट? तो यहां पे की एलिमेंट है, बट द सेंटेंस सेज कि फूड क्राइसिस ही स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल कौन कर रहा है? पीपल एंड पुअर पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। फूड क्राइसिस स्ट्रगल नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन क्या है? इररिलेवेंट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? एक बार हम ऑप्शन ई को पढ़ते हैं। इट सेज फूड क्राइसिस इन सदर्न सुडान स्ट्रगलिंग अंडर, अगेन ये कह रहा है कि फूड क्राइसिस स्ट्रगलिंग। हमने बोला था आपको कि गिवन ऑप्शंस में क्या होगा, दे विल गिव यू एलिमेंट्स बट इररिलेवेंटली। तो व्हेन जो ही आप ऑप्शन को पढ़ोगे, इट सेज द फूड क्राइसिस स्ट्रगलिंग, ये क्या है? नॉनसेंस है, इररिलेवेंट है, वी विल नॉट टच। इसका मतलब ये हुआ कि अमॉन्ग ऑल द ऑप्शंस ऑप्शन सी प्रॉपरली समराइजेस, क्योंकि यहां पे मेनी कंट्रीज एशिया एंड अफ्रीका डिस्कस हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड फूड क्राइसिस या शॉर्टेज इंप्लीमेंट हुआ है, और थ्रेट इन सूडान डिस्कस हुआ है, राइज इन कॉस्ट डिस्कस हुआ है, स्टेपल फूड। इट मींस ऑप्शन सी प्रॉपरली समराइजेस द गिवन पैसेज। तो ये कुछ करेक्ट अप्रोच है जो आपको फॉलो करना है। एज आई सेड you keep preparing at home. When we come in the next class, we solve some more questions of paragraph summary of recent years exams. Keep working hard, keep watching our videos, and if possible, keep sharing it with your friends. Thank you very much. Have a great day.